Okay, good morning, my dear students, once again. Okay, students, as you know that in previous video, I gave you general ideas related to the bryophytes. I told you some common characteristic features, some methods of reproduction, and I told you about some examples as well as some economically important bryophytes too. So in this series, students, today I am here with the classification of bryophytes. ठीक है. Now how the bryophytes are classified, what are their various types, today I am going to discuss along with you. So students, bryophytes are basically classified into three different classes. ठीक है. And what are these classes? I am going to tell you that the first one class is called as it is called as Hepaticopsida. You will pronunciate it Hepaticopsida. ठीक है. And the common examples of this class are liverworts. ठीक है. And the second class is called as Anthoceratopsida. Once again I am announcing it, Anthoceratopsida. And hornworts are included in this category. And the last one class is called as Bryopsida. And in case of the Bryopsida, mosses are there. Now in your NCERT syllabus we have to discuss about only two classes. The first one Hepaticopsida and the second one is Bryopsida. ठीक है. So I will not discuss the middle one. This is called Anthoceratopsida. ठीक है. We have to discuss about only the liverworts as well as mosses. So beta, initially I am going to discuss about the very first one, Hepaticopsida or liverworts. So if you will observe the liverworts, it will be a question for you. Have you ever observed liverworts? I am giving you some common example. Have you ever seen Riccia or Markensia around you? Okay, no. So today I am showing you figure. Have you observed such kind of plants? And you can observe these kind of plants where logged water is there, or shady area is there, or very moisture in the soil is there. So try to go. Nowadays this is the lockdown period. After the lockdown period, if you will visit the shady area or the moist area, so might be possible that you are observing such kind of structures. Now these structures are the examples of the very first one class of bryophytes, and it is called as liverworts or Hepaticopsida. ठीक है. The plant body of the liverwort is called thalloid. ठीक है. तो Hepaticopsida में ये liverworts के अंदर आने वाले जो भी प्लांट है, इनकी बॉडी थैलॉइड होती है ना. अब एक बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलॉइड. थैलॉइड का मतलब ये होता है कि जिसमें ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीफ होता है. सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज थैलॉइड स्ट्रक्चर. एग्जांपल मार्केंसिया. अब नाउ इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस वन डायग्राम इज थैलस. आप देख रहे हैं ना, इसमें रूट है ना स्टेम है. अब आप देख रहे कि इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर तो है. यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइजॉइड्स. ठीक है. बट दीज आर नॉट द ट्रू रूट्स. ठीक है. ओके. द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. डॉर्सीवेंट्रल का मतलब होता है इफ यू विल पुट अ बुक ऑन अ टेबल. ठीक है. नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बुक, the lower surface of book is called ventral surface and the upper surface is called as dorsal surface. तो आप देखेंगे कि जो मार्केंशिया है या रिक्शिया भी इसके अंदर आता है, ये द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, मतलब डॉर्सली वेंट्रली फ्लैट होगा आपको तकरीबन एंड क्लोज्ड अप्रेस्ड विद द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट मतलब जिस ग्राउंड के ऊपर ये उग रहा है उसके ऊपर डॉर्सी वेंट्रली क्या करेगा, रन करेगा. द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. कभी कभार आपको देखेंगे कि इसमें फॉल्स लीव्स भी दिखेंगी. ठीक है. और यू विल ऑब्जर्व दैट और इट विल अपीयर दैट कि बहुत टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इससे निकल रहे हैं. एंड दे आर अरेंज इन रोज, यानी कि स्टेम है, बीच में स्टेम है, स्टेम के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपको रोज दिखेंगी. ठीक है. रोज के फॉर्म में ये लीफ लाइक अपेंडेजेस इसमें नजर आएंगे. बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमी और गैमा. ठीक है. नाउ अगर बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय टेक्स प्लेस बाय सिंपल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि थैलस इज गोइंग टू बी डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज एज अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है. वाइल
Asexual mode of reproduction also takes place by some special structures. These structures are called as gamete, which is in plural form, यानी बहुत सारे गैमा की बात करें तो सिंगुलर में गैमा, एंड बहुत सारे अगर हैं स्ट्रक्चर्स हैं तो उन्हें गैमी बोलेंगे. गैमी आर ग्रीन multicellular asexual buds which develop into small receptacles called gamma cups located on the thalli. ठीक है, and these gamma becomes detached from the parent body and germinate to form a new individual. तो एक्चुअल में ये गैमी क्या है, गैमा क्या है? दीज आर ग्रीन कलर्ड, ठीक है, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यानी ये ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर, इफ यू विल ऑब्जर्व हेयर, नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व हेयर गैमा कप इज शोइंग हेयर. ठीक है, नाउ तो ये गैमा जो है एक ग्रीन कलर के क्या बोलते हैं कि हम मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड हैं जो गैमा कप्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ समय बाद ये गैमी जो होते हैं या गैमा जो होते हैं डी अटैच हो जाते हैं, जैसे सिंपली बडिंग में होता है, और डी अटैच होने के बाद जहाँ पर भी गिरेंगे तो वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाएंगे और एक नए इंडिविजुअल को पैदा करेंगे. ठीक है, नाउ अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. During the sexual reproduction, male and female sex organs are produced either in the same or in different thalli. यानी कहने का मतलब है कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट, मेल सेक्सुअल ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम. ठीक है, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम यानी मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एक ही थैलस के पास भी हो सकते हैं या ये सेपरेट भी हो सकते हैं, यानी ये एक थैलस यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है इन सिंपल वर्ड्स, और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है. ठीक है, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल. नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व हेयर, ठीक है, ओके, इट्स नॉट मेंशन्ड हेयर, ओके, दिस इज कॉल्ड एंथ्रीडोफोर एंड दिस इज कॉल्ड आर्चिगोनियोफोर. यानी एंथ्रीडोफोर मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ एंथ्रीडियम, और आर्चिगोनियोफोर इज अ पार्ट ऑफ द आर्चिगोनियम. तो एक्चुअल में क्या होगा, व्हेन द मेल गैमेट विल produce male gametes, then the male gametes will fuse with the female gamete and water will help to for the transportation of the gametes. ठीक है, जब फ्यूज़न हो जाएगा तो आपने पढ़ा था कि जो फीमेल का जो गैमेटोफाइटिक फेज़ है इसके साथ ही इसकी स्पोरोफाइटिक फेज़ भी अटैच होती है. यानी स्पोरोफाइटिक फेज़ मतलब जाइगोट, जब डिप्लॉइड फेज़ में है तो स्पोरोफाइटिक फेज़, और जब हेप्लॉइड फेज़ में ब्रायोफाइट है तो गैमेटोफाइटिक फेज़. ठीक है, तो अब बात करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई. द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल. जो इसका स्पोरोफाइट बनता है यानी जो जाइगोट बनता है, इसके तीन पार्ट होते हैं, तो फूड, सीटा एंड कैप्सूल. बेसमेंट वाला पार्ट फूड हो गया, स्टेम लाइक पार्ट जो दिखता है उसमें आपका क्या हो गया, सीटा हो गया, एंड द टॉप मोस्ट पार्ट इज कैप्सूल. आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल. तो जो टॉप मोस्ट में पार्ट कैप्सूल होता है, कैप्सूल में क्या होता है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं. एंड दीज स्पोर्स आर वंस अगेन द प्रोडक्ट ऑफ द मियोसिस. तो ये दोबारा से कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, एंड वेन एवर दे आर गोइंग टू बी जर्मिनेट, तो दोबारा से ये क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइटिक थैलस बना देंगे. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. आई थिंक इट्स क्लियर. दिस इज द अबाउट द फर्स्ट वन, लीवर वर्ड्स, एंड द टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर वर्ड्स आर रिक्शिया एंड मार्केशिया. ठीक है, now this is the second. Okay, as I told you earlier, we have to discuss Bryopsida again. ठीक है, we have not to discuss about the hornworts. ठीक है, Bryopsida. Now I am going to tell you about the some special characteristic feature of the Bryopsida. The gametophyte which consists of two stages. In case of the Bryopsida, यानी कि mosses, common moss जो आपने देखी होंगी. ठीक है, now there is a figure and you can observe this figure, and आपने ऐसे स्ट्रक्चर बहुत बार देखे होंगे. ठीक है, शेडी एरियाज में. ठीक है, एंड द तो मॉस के लाइफ साइकिल में जब वो उसकी गैमेटोफाइटिक फेज आती है तो दो स्टेजेस आती हैं बेटा, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर. द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनीमा स्टेज एंड द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड लीफी स्टेज. तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इन गैमेटोफाइटिक स्टेज जनरली दो फेज आएंगी, एक तो गैमेटोफाइटिक आएगी, दूसरी स्पोरोफाइटिक आएगी. अगर बात करें फर्स्ट वन ही यानी गैमेटोफाइटिक फेज में भी दो फेजेज आ जाएंगी, एक आएगी प्रोटोनीमा फेज एंड द सेकंड वन फेज इज कॉल्ड लीफी फेज. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज फेजेस. द फर्स्ट फेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्ट्स. यानी स्पोर्ट जब डोमिनेट करेंगे, जो प्लांट लाइक थैलस बॉडी बनेगी आपकी स्टार्टिंग में, वो आपकी क्या होगी, प्रोटोनीमा. ठीक है, द सेकंड इज कॉल्ड लीफी स्टेज. ठीक है, द सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड. यानी कि बर्ड मतलब जहाँ से कली निकलती है. तो यानी कि जो प्रोटोनीमा स्टेज है वहाँ पे जो लेटरल साइड पे यानी कि जो क्रीपिंग आपकी स्टेज होगी. ठीक है, क्योंकि जो स्पोर जर्मिनेट होगा तो जो आपका मॉस निकलेगा तो ज़मीन पे क्रीप करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, तो क्रीपिंग जो आपका मॉस होगा तो उसकी लेटरल साइड पे जो भी बर्ड निकलेंगी.
ठीक है। स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर होगा उसकी लेटरल साइड पे भी जो बड होंगी उन बड से आपकी क्या निकलेंगी, लीव्स निकलना स्टार्ट होंगी। एंड लीफी स्टेज आपकी शुरू हो जाएगी। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सल बेयरिंग। तो ये अपराइट आपकी सीधी खड़ी हो जाती है, अभी तक क्रीपिंग थी, ठीक है। एंड इसके पास लीव लाइक स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ सकते हैं, विच आर स्पायरली अरेंज्ड। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। और ये सॉइल के साथ किसके साथ अटैच रहते हैं, राइजोइड्स की मदद से। एंड दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। और इनकी जो लीफी स्टेज है इसमें आपको सेक्सुअल ऑर्गन दिखेंगे, वहीं आपकी प्रोटोनीमा में आपको ये डिसअपियर होंगे, आपको ये नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेज इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग in the secondary protonema. If vegetative propagation is taking place, then it will take place by either by the fragmentation or by budding, and it takes place on the only in the protonema stage. While the sexual reproduction in sex organ antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte consisting of a fruit, seta, and capsule. Now here you can observe this one stage is basically leafy stage, ठीक है। and the structure you are observing here, this one structure which I am zooming, this is called basically this structure is basically produced after the fertilization, and we can say that it's the sporophytic phase at the top. And at the top you are observing a capsule, ठीक है। एंड इट हैज़ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड सीटा, एंड फाइनली इट इज़ अटैच विद द फूट, ठीक है। नाउ द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर elaborated than the liverworts, ठीक है। एंड द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर formed after the meiosis, and the moss have elaborate mechanism to spore dispersal. Common examples are Funaria, Polytrichum, and Sphagnum. So what happens after fertilization? The zygote forms, and the zygote develops into the sporophytic phase. Sporophytic phase is three parts: fruit, seta, and capsule, ठीक है। and inside the capsule the spores are formed after the meiosis, and they are dispersed in the atmosphere or into the environment. And whenever the spores are going to be germinate, they are going to produce once again the protonema stage, ठीक है। common examples are Funaria, Polytrichum, and Sphagnum. I think this is enough. So today we discussed about two classes, uh, Hepatocopsida and Bryopsida, ठीक है। I think it's enough for today. And if you have any query, you can ask me once again. Till then, thank you and bye.